Exercise 10.5 of chapter Circles. The question number 1 is, in the figure 10.36, A, B and C are 3 points on a circle with center O. A, B, C, 3 points on a circle with center O. Such that angle BOC 30 degree and the angle AOB 60 degree. If D is a point on the circle other than the arc ABC, okay, find angle ADC. Find angle ADC. This is a figure. This point is D. Okay. Angle AOB 60 degree. BOC 30 degree. It means angle AOC 60 plus 30. It is equal to the 90 degree. ओके, तो फाइंड एंगल एडीसी. हम जानते हैं सेंटर पे बनने वाला एंगल जो होता है वो रेस्ट ऑफ द आर्क पे बनने वाले का डबल होता है, या फिर एंगल एडीसी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एओसी. क्योंकि क्या होता है कि जो आर्क में बनने वाला एंगल होता है और सेंटर पे बनने वाले एंगल का हाफ होता है. तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 ऑफ 90 डिग्री. इट इज इक्वल टू द 45. Angle subtended by an arc of a circle at the center is double the angle formed by the same arc on the circle. ये इसका डबल होता है. तो ये 45, ये 90, या 90 है तो ये 45. Question number 2. Question number 2 is, a chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on a minor arc and also at a point on the major arc. The chord of circle is equal to the radius of circle. फिगर देखिए. Chord of circle, this is the chord and this is the radius. All are equal. It means it is a equilateral triangle. OAB is an equilateral triangle. Therefore, each angle equal to the 60 degree. Each angle equal to 60 degree. And find the angle formed by this arc on the circle in major arc and the minor arc. Minor ये है नीचे वाली, ये यहाँ पर सपोज ये पॉइंट डी सी और ये पॉइंट डी. हमको दोनों एंगल निकालने हैं, ए सी बी एंड ए डी बी. ए बी आर्क से बनने वाले, तो लिखेंगे आर्क ए बी इक्वल टू OA and OB. Therefore, triangle AOB is an equilateral triangle. Equilateral triangle. Therefore, each angle equal to the 60 degree. Angle AOB equal to 60 degree. अब हमको ये इसके जस्ट हाफ के बराबर होता है, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी. 1/2 ऑफ 60 डिग्री. इट इज इक्वल टू द 30 डिग्री. नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी. रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी निकालेंगे पहले. रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 60. It is equal to the 300. Therefore, ये जो होता है माइनर वाला, इसका जस्ट हाफ होगा. तो एंगल ए डी बी इक्वल टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी. ओके, तो इट इज इक्वल टू द 1/2 ऑफ 300. इट इज इक्वल टू द 150. Question number 3. The question number 3 is, in the figure 10.37, angle PQ are 100 degree and P, Q and R are the points of a circle with center O. Find angle OPR. OPR means this much. ये छोटा एंगल निकालना है हमको. एंगल OPR. एंगल PQ are 100 डिग्री. तो ये बनने वाला आर्क में और इससे सेंटर पे बनने वाला एंगल यहाँ बनेगा.
तो 100 का ये डबल होगा 200, सेंटर पे बनने वाला इसका डबल होता है। और फिर ये 200 तो हम लोग रिफ्लेक्स में निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 160 डिग्री। ओके, जब 160 है तो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो एंगल निकलेगा OPR। ओके, राइट। एंगल PQR इक्वल टू 100 डिग्री। देयरफॉर एंगल रिफ्लेक्स कर देते हैं, रिफ्लेक्स एंगल POR इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ऑफ PQR। सेंटर पे बनने वाला हमेशा डबल होगा, इट मीन्स इट इज इक्वल टू द 200 डिग्री। ओके, तो एंगल POR इक्वल टू 360 माइनस 200, इट इज इक्वल टू द 160 डिग्री। फिर लिखेंगे OP इक्वल टू OR रेडियाई। ओके, तो ट्राइंगल POR is an isosceles triangle. Isosceles triangle. Therefore, angle OPR equal to angle ORP. लेट कर लेते हैं इसको X। इन ट्राइंगल POR क्या हो जाएगा x प्लस 160 डिग्री इक्वल टू 180। 2x इक्वल टू 180 माइनस 160, इट इज इक्वल टू द 20 डिग्री। x इक्वल टू 20/2 10 डिग्री। हमसे कौन सा एंगल पूछा था, OPR इक्वल टू 10 लिख देंगे। देयरफॉर एंगल OPR इक्वल टू 10 डिग्री। Question number 4. In figure 10.38, angle ABC 69 degree, ACB 31 degree. Find the angle BDC. This angle. Okay. This is a figure. Angle ABC 69 degree, ACB 31 degree. Find angle BDC. तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे पहले BAC। एंगल ABC 69 डिग्री, एंगल ACB 31 डिग्री। In triangle ABC, sum of all the three angles equal to 180 degree by triangle sum property. BAC equal to 180 degree. ABC 69 plus 31 plus angle BAC equal to 180 degree. ऐड करेंगे 100 डिग्री, एंगल BAC इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री, एंगल 80 डिग्री। एंगल हमारा BAC इक्वल टू 80 डिग्री। तो जितना एंगल A होगा उतना ही एंगल D होगा, क्योंकि एंगल फॉर्म बाय द सेम आर्क। लिखेंगे एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC। एंगल formed by same arc BC. Therefore angle BDC equal to 80 degree. हो गया। Question number 5. In the figure 10.39, A, B, C and D are the 4 points on a circle. AC and BD intersect at point E such that angle BEC 130 degree and ECD 20 degree. Find the angle BAC. This angle BAC. This is a figure. Angle BEC 130 degree and ECD 20 degree. So first we have to find the angle CED by linear pair. Okay.
180 degree linear pair. तो BAC 130 degree, angle CED equal to 180 minus 130. It is equal to the 50 degree. This angle equal to the 50. In triangle CED, triangle sum property से हम लोग निकालेंगे एंगल D. एंगल CED प्लस एंगल ECD प्लस एंगल D और द EDC 180 degree. CED 50 degree plus 20 degree plus EDC or the angle D equal to 180 minus 70. It is equal to the 110 degree. If this angle equal to 110, therefore angle A equal to D formed by same arc BC. Angle BDC equal to angle BAC. Angle formed in same segment, ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल फॉर्म्ड इन सेम सेगमेंट. एक ही सेगमेंट में है तो भी दोनों की वैल्यू इक्वल है. BAC equal to 110 degree. Question number 6. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at E. If angle DBC 70 degree, BAC 30 degree, find angle BCD. And further, if AB equal to BC, then find ECD. The cyclic quadrilateral means the quadrilateral formed in a circle. This is a cyclic quadrilateral. Name A, B, C, D. Okay. Whose diagonals intersect at E. Okay. And angle DBC 70 degree. DBC, it is equal to the 70 degree. And angle BAC 30. BAC. फाइंड करना है हमको एंगल BCD. BCD ये पूरा एंगल. तो देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है. तो ये 70 है, सेम आर्क से फॉर्म कर रहा है. ये देखिए CBD इक्वल टू CAD. ये दोनों एंगल सेम होंगे, सेम आर्क से बन रहे हैं दोनों. तो ये 70, तो ये भी क्या हो जाएगा 70 प्लस 30 100 और A और C का सम होता है आपका 180. तो C आ जाएगा 80 डिग्री. ओके. एंगल DBC इक्वल टू DAC. DBC इक्वल टू एंगल DAC. एंगल फॉर्म बाय सेम आर्क. ये रीजन लिख देते हैं. तो एंगल DBC कितना दिया हुआ है हमको 70 डिग्री. देयरफॉर एंगल DAC इक्वल टू 70 डिग्री. तो एंगल DAB इक्वल टू 70 प्लस 30. इट इज इक्वल टू द 100 डिग्री. फिर लिखेंगे एंगल A प्लस या फिर एंगल DAB प्लस एंगल DCB इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन है अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ओके. तो एंगल DAB 100 डिग्री. DCB हमको फाइंड करना है. निकल जाएगा एंगल DCB इक्वल टू 180 माइनस 100.
इट इज इक्वल टू द 80 डिग्री। नेक्स्ट कह रहा है इफ ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी लाइन इक्वल टू द बी सी, फाइंड एंगल ई सी डी, ई सी डी, ई सी डी दिस मच। देखिए ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से, और ये पूरा कितना है 80, 80 में से 30 माइनस कर देंगे, इट इज इक्वल टू द 50 डिग्री। लिखेंगे ए बी इक्वल टू बी सी, देयरफॉर एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल बी सी ए, देयरफॉर एंगल बी सी ए इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल डी सी बी इक्वल टू 80 डिग्री, और एंगल डी सी ए प्लस एंगल बी सी ए इक्वल टू 80 डिग्री। ये इन दोनों का सम है और हमको निकालना है डी सी ए, डी ई सी डी, डी सी ए नहीं ई सी डी। जैसे डी सी ए है इसको हम लोग लिख देंगे ई सी डी, सेम है, और एंगल बी सी इक्वल टू 30 डिग्री, ई सी डी इक्वल टू 80 माइनस 30 इक्वल टू 50 हो गया।